नमस्ते। आपका पुनः पुनः स्वागत है YouTube चैनल एजर्टिव आयुर्वेदा पर। और बुधवार और शुक्रवार को हमारा जो एक कॉलम चल रहा है ब्रश द बसेस, कि अपने नॉलेज को सटीक लाया जाए और उस पर एक बात की जाए। उस पर बहुत डिफरेंट टॉपिक्स की डिमांड आ रही है। एवरेज में हफ्ते में 2 या 3 डिमांड मुझे मिल जाती है कि इस टॉपिक पर बोलिए, इस टॉपिक पर बोलिए, और मैं उसको अपने साथ नोट करता चल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि सबको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो अभी हम लोग फाइटोफार्मास्यूटिकल की सीरीज़ पर चल रहे हैं। फाइटोफार्मास्यूटिकल में एक सेशन हम लोग कर चुके हैं और इन दैट सेशन ऑफ द फाइटोफार्मास्यूटिकल we discussed about the origin of the thought process of the pharmaceutical, and it was very clearly established in the last session, our interaction, that the main reason of the phytopharmaceutical is development or the attention of the phytopharmaceutical about the phytopharmaceutical by the industry or by the government even. That is the only economical commerce. Everywhere there is a commerce. Whatsoever the thing is the commerce, whether it is the defense deal or it is the any infrastructural activities, or the even in the field of medicine, there is a huge commerce. Development of a molecule and the market of that molecule, and then the patent of the molecule and the over patent the molecule, and many more issues are there. There is the only economy is involved, and very big players are here in the market or in the field. They are so effective, they are so significant that they have the capability to change the mind of governments, to change the mind of public by their propaganda, but by their propagation of false or true informations like that. And in the field of medicine, there is a lot of fake informations are moving all around. So the phytopharmaceuticals were established, or this thought of the development of phytopharmaceutical is completely economical. Of course, economic driving the knowledge, and knowledge is ultimately for the benefit of the common man than its knowledge. So here is the case of the phytopharmaceutical too, in this way. So I remember Dr. B. Nityanand committee. I have given you the reference of Dr. Savita Satkopan, the chairperson of the Ayurvedic Pharmacopoeia committee, approximately back 20 years. So now, what's the phytopharmaceutical now? So after the recommendation of the Dr. B. Nityanand committee that here is a very much a scope for the phytopharmaceuticals, not only in the market of India, but in the global market. As Dr. Savita Satkopan pointed out very well, that this is the third upsurge of the West to the East, and specifically to the India, individually to the Ayurveda and the herbal medicines. Fine. In that context, if we go on, then the process is started from that time only. But now in the 2023, when we are discussing the phytopharmaceutical, it is in the boom condition. You know, people are investing in the Invest India, the program of the government of India. In the Invest India, there is a lot of takers of the investment in the phytopharmaceutical field, and they are ready to invest thousands of crores looking to the global market of the wellness, that is from the herbal medicine, of the antibiotic resistance, that is from the herbal medicine, of the
acute and the chronic disorders where the molecules are producing a lot of ADE, they are in the search of something from the Mother Nature. They want to isolate some molecules and they want here to develop a new category of the drug. Not only this, they also, they mean scientists of the globe, not only the India, they are behind the all Ayurvedic literature, specifically to the Nighantus. They are surveying it, they are going in the deeper way. Along with this, the herbs described into the Ayurvedic literature, scientists are also thinking out of box, a new plant which is not discussed in Ayurvedic literature, but that may be beneficial to answer this all problems, right from antimicrobial resistance to the wellness. They are thinking to develop something from herbal origin. And we Ayurvedists too also working in this field. We are not limiting only to all the publications of the API, which are covering 500 plants, materia medica approximately. But if we think, then there are the issues, and people are thinking about the Anukta Dravya, which is not written into the Ayurvedic Nighantus specifically. I am not describing it from the Samhita only, but Samhitas are having the whole literature, but specifically if you are thinking about the plant description, then these are the Nighantu, and most established is in the Laghutra is the Bhav Prakash, then all the Nighantus. Search is on, research is on, to explore the potency of the herbal medicines. And after this particularly pandemic, COVID, and this one thought, that is the mental peace, the holistic approach, the Ayurvedic wellness doctrines, world is looking to the Ayurveda and the herbs. And in this way, Ayurvedists are also working for the Anukta Dravya. And on the lines of Acharyas of ancient period, on the doctrines, on the fundamentals of the established in Ayurveda about to decide the Rasa, Guna, Veera, Vipak, Prabhav of a plant which is not into the Ayurvedic literature, people are working under the Anukta Dravya. Third reason is also, third sector is also here, who is working very elaborately, very scientifically, systematically in this field. And that is the NIF, National Innovation Foundation, from the Department of Science and Technology. They have just released in the 2023 year, in the presidential biennial, the compendium in Delhi, Rashtrapati Bhavan. And that too, CCRS was very helpful there. This Jhansi, Gwalior units, they have recognized all its material. I mean, information, standards, analytical standards for that particular compendium released by the NIF, National Innovation Foundation of the Ministry of Science and Technology, Government of India. So all these things, if you see, these are for one achievement, and that is phytopharmaceutical. And NIF also willing to develop phytopharmaceutical. Ayurvedic people are also willing to develop phytopharmaceutical. Allopathic people are also willing to develop phytopharmaceutical. And in other words, all globe is willing to develop phytopharmaceutical. Then, why we Ayurvedists are opposing the development of the phytopharmaceutical?
Why we are saying that the November 2015 notification is not from, it should not be from the CDSCO, but it should be from the Ministry of Ayush? What kind of the different thoughts we are arguing with those people? That is a point of concern for us. And we have to talk about this in a very clear words. आप बात करते हैं नवंबर 2015 के नोटिफिकेशन में कि आप आयुर्वेदिक लिटरेचर से प्लांट लेंगे, उसकी फार्माकोलॉजी जो वहाँ पर लिखी हुई है, उसके जो प्रभाव हैं, उसके आधार पर आप थेरापेटिक इफ़ेक्ट पर काम करेंगे। आप रस गुण वीर विपाक प्रभाव की थ्योरी, रस से विपाक तक की तो थ्योरी को आप नहीं मान्यता दे रहे हैं, लेकिन आप प्रभाव की थ्योरी को मानते हुए वहीं से उठाएंगे कि अर्जुन हृदय है, शतावरी बल्य है, ठीक है, ब्राह्मी मेद्य है, ठीक है। तो आप जो उसको ले रहे हैं उस ज्ञान को कि ब्राह्मी को मेद्य आयुर्वेद ने लिखा, शतावरी को बल्य आयुर्वेद ने लिखा, अर्जुन को हृदय आयुर्वेद ने लिखा, और जब आप फाइनल नोटिफिकेशन में जाते हैं तो आयुर्वेद का नाम ही नहीं लेते हैं। तो लड़ाई अस्तित्व की है, वर्चस्व की नहीं है। बड़ा सही शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ मित्रों, लड़ाई वर्चस्व की नहीं है। वर्चस्व की तो लड़ाई वहाँ होती है जहाँ पर दो समान लोग हैं। टू अनइक्वल्स मे नॉट फाइट फॉर द इक्वालिटी या एम्पिरिज्म, पावर्स, नथिंग। लड़ाई अस्तित्व की है। आयुर्वेद का आप नाम भुलाते जाएंगे और आयुर्वेदिक ज्ञान का उपयोग करेंगे और अंत में आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे आयुर्वेद को, तो ये आयुर्वेद वाले लोग कैसे मान जाएंगे? तो लड़ाई अस्तित्व की है, लड़ाई वर्चस्व की नहीं है। वी आर फाइटिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द आयुर्वेदा डॉक्ट्रिन्स, नॉट वी आर फाइटिंग फॉर द सुपीरियरिटी ऑफ द आयुर्वेदा डॉक्ट्रिन्स और द इम्पीरियलिज्म ऑफ द आयुर्वेदा डॉक्ट्रिन्स। वी आर जस्ट फाइटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक नॉलेज। यू हैव टू डू इट, यू मस्ट डू इट। आप तो ये भी करते हैं कि ठीक है, हम आयुर्वेद के ज्ञान के आधार पर ले रहे हैं और ये हज़ारों साल से ये प्लांट काम आ रहा है और इसी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को करता है, इसका फलश्रुति यही है, और उसके बेसिस पर आप शेड्यूल वाई को चेंज करते हैं, कुछ रिलैक्सेशन दे देते हैं। शेड्यूल वाई 1 में आते हैं। न्यू ड्रग डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स आपने इंडिया में शेड्यूल वाई में दिए हुए हैं ड्रग रूल 1945 में, उसके पैरामीटर्स को काट करके आप उसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ को हटा दे रहे हैं कि नहीं, ये तो एस्टेब्लिश्ड है आयुर्वेद में। आप सीधे क्लिनिकल स्टडीज़ पर जा करके उसका डाटा जनरेट करके और एक मेडिसिन के रूप में देते हैं। और फिर आप ये भी कहते हैं, आपने बनाया हुआ, कि कोई भी चीज़ फाइटोफार्मास्यूटिकल तब कही जाएगी जब उसमें एटलीस्ट 4 मॉलिक्यूल्स आइसोलेटेड हो उस पर्टिकुलर प्लांट से, 4 स्वतंत्र एग्जिस्टेंस के मॉलिक्यूल जिनका कि इंडिविजुअल प्लस कंबाइंड कोई न कोई उस डायरेक्शन में जहां आप जा रहे हैं, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप अचीव करना चाहते हैं, जो थेरेपेटिक एफिकेसी आप देखना चाहते हैं, जो क्लिनिकल इम्पैक्ट आप देखना चाहते हैं, वो चारों मॉलिक्यूल उस दिशा में काम करने वाले होने चाहिए। जो आपने आइसोलेट किया है वो आप उसको फाइटोफार्मास्यूटिकल कहेंगे। और नॉलेज आपने आयुर्वेद के लिया, इसको लिखा आपने कि चूँकि हमने ये नॉलेज आयुर्वेद से लिया है, वहाँ पर ये प्लांट इस तरीके से यूज किया जाता है, इसलिए हम शेड्यूल वाई के प्री क्लिनिकल स्टेज को हटा रहे हैं। हम खाली क्लिनिकल स्टेज को लेंगे और आपने शेड्यूल वाई 1 नोटिफाई कर दिया, गुड। लेकिन जब हम फाइनल में आते हैं और उस ड्रग की लाइसेंसिंग में आते हैं तो आयुर्वेद का कोई सही नहीं है वहाँ। आप तो ये भी नहीं लिखेंगे कि ये दिस नॉलेज इज ड्रिवन फ्रॉम द आयुर्वेदिक लिटरेचर। आप तो उसको बिल्कुल एक एलोपैथिक मेडिसिन के समकक्ष बना के मार्केट में लाना चाहते हैं।
और सारी पावर उसकी लाइसेंसिंग की आप अपने पास ही रखना चाहते हैं। CDSCO में आयुर्वेद की विंग और चाहे एलोपैथ की विंग, उसकी कोई तुलना ही नहीं है हमारी। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ स्वांतः सुखाय में से किसी कोई भ्रम में मैं नहीं हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं आनंद चौधरी किसी भ्रम में नहीं हूँ कि नहीं हम एलोपैथी वालों के बराबर आ गए हैं और हम उनसे कंधा से कंधा मिला करके चलते हैं। बिल्कुल नहीं, इस भ्रम में तो जीना ही नहीं है। अभी हमारा उनका मुकाबला तो हो ही नहीं सकता है। उनको इतना राजाश्रय है उनके पास। ठीक है, आप कहिए हमारे पास भी राजाश्रय है 2023 में, लेकिन उनका राजाश्रय तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमें थोड़ा थोड़ा 5 गुना कर दिया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सचिव साहब की, वैद्य राजेश कोटेचा जी की, कि 7 साल में उन्होंने बजट को 4 गुना करा लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। वी आर प्राउड ऑफ यू सर। लेकिन राजाश्रय की जो उम्मीद है अभी उधर से इधर से, अभी वो नहीं है। अभी तो हम बहुत सारी जगहों पर हमें हेल्थ रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आती है, उसमें आयुर्वेद का नाम ही नहीं होता है। जो वर्ल्ड बैंक छापता है उसमें आयुर्वेद का नाम ही नहीं होता है। फिर जब हम वहाँ नहीं जा सकते, मैंने तो ये पूछा ही था कि भाई अगर हेल्थ रिपोर्ट में कंट्री के हम नहीं हैं तो क्या हम आयुर्वेद कर क्या रहे हैं? आयुर्वेदिक मैन पावर अगर वहाँ नहीं जोड़ी जा रही है तो हम कर क्या रहे हैं? तो फिर एक बड़ा मासूम सा जवाब मिलता है कि नहीं, हमारी अलग से निकलेगी, पता नहीं कब निकलेगी। हमको उस लेवल पर रिकॉग्निशन नहीं है अभी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की लीडरशिप में पैंडेमिक में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सेक्रेटरी एक साथ दिखे, एक साथ बात करते हुए दिखे, एक साथ प्रोग्राम लॉन्चिंग में रहे। कि मेहनत बहुत करनी है, बहुत करनी है। तो फिर से वहीं पर आता हूँ मैं, इस बैकग्राउंड के बाद, कि फाइटोफार्मास्यूटिकल के नाम पर कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद के लोगों की बस यही मांग है। और फाइटोफार्मास्यूटिकल की लाइसेंसिंग में आयुर्वेद का से होना चाहिए। अरे हम जाने तो सही कि आपने किस प्लांट को लिया और कैसे लिया और आप उसको कहाँ पर, कौन से प्रभाव को आप वहाँ उपयोग करा रहे हैं। फिर डॉक्टर वी नित्यानंद कमेटी में एक रिकमेंडेशन था कि भाई आप आयुर्वेद को नॉलेज को बेस करके इसको डेवलप कर रहे हैं, तो आप आयुर्वेद वालों को रिटर्न में क्या दे रहे हैं? ये पूछा था सवाल प्रोफेसर आर.एस. सिंह साहब ने डॉक्टर वी नित्यानंद जी से, रिटर्न में आयुर्वेद को क्या मिल रहा है? हजारों साल की मेहनत का आप उपयोग कर रहे हैं, रिटर्न में आयुर्वेद को क्या मिल रहा है? तो रिटर्न में आयुर्वेद को ये मिला था गौर करिएगा, था कि इससे जो लाइन से जो डेवलप होंगी ड्रग्स, वो आयुर्वेद के लोग भी प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। अरे जिस देश में अभी लड़ाई ये चल रही हो आज की भी तारीख में कि इवन जो एलोपैथी के OTC प्रोडक्ट्स हैं, अब भी 6 दिन पहले उस पर भी एक सेशन हो सकता है कि OTC की लिस्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कि ये ड्रग OTC की हैं एलोपैथ की, जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल सकती हैं, नोटिफाई हुई हैं। तो अभी जो उनकी OTC ड्रग्स हैं, वो अगर किसी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स के लेटर पैड पर चला जाता है, ध्यान दीजिएगा, OTC लिस्टेड ड्रग जिसको जाके कोई कॉमन मैन खरीद सकता है, केमिस्ट बेच सकता है, उन ड्रग्स को भी अगर कोई आयुर्वेद वाला अपने पैड पर लिख दे तो एक पीनल एक्शन इनवाइट करता है कि आपने तो पढ़ाई की है साहब आयुर्वेद की, आप एलोपैथ कहाँ से लिख रहे हैं? जबकि वो एलोपैथिक दवा OTC पर अवेलेबल है, लेकिन आपके उस प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं जाएगी। वही बात है कि तमाम लोग एलोपैथ के आयुर्वेदिक दवाएं लिख रहे हैं, हमारे इसी हॉस्पिटल में लिख रहे हैं जो हमारा BHU है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन पर कोई आयुर्वेद वाला नहीं लिखता, एलोपैथी वाला आयुर्वेद नहीं लिखता। उसको बोल देते हैं कि ये दवाई खा लेना, आयुर्वेद की बड़ी अच्छी है, उसको अलग से लिख के दे देते हैं। लेकिन अपने जो हॉस्पिटल का वो जो सिस्टम है, I mean जो OPD स्लिप है, उस पर नहीं लिखते लोग। हमने 1-2 लोगों को कहा कि भाई आप इसकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि, फिर से मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कि इस कंपनी की ये दवा बहुत अच्छा काम कर रही है आपके डिपार्टमेंट में और आप उससे उसके इफ़ेक्ट से सेटिस्फाइड हैं, अपनी सुपर स्पेशलिटी में आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो भैया अपनी
प्रिस्क्रिप्शन में लिख दो। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन में लिखने पर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो खूब लिख रहे हैं लोग। अब भाई हॉस्पिटल एक है तो हमारे यहाँ तो लिखा जा रहा है वो एलोपैथिक ड्रग, तो आप भी लिखो। तो कुछ मेडिसिन के जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं इस समय, जिनको अभी पद्मश्री भी दी गई, उनका नाम मैं ले सकता हूँ, बड़े सम्मान के साथ लूँगा। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, वो ये साहस रखते थे कि अपने ओपीडी स्लिप में एलोपैथी आयुर्वेद की दवा बराबर लिख दिया करते थे, और आज ईश्वर ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया है। पूरा ट्रेन भर के सवेरे आती है और 1 रुपया वो किसी से कंसल्टेशन फीस नहीं लेते हैं आज की भी तारीख में, इसलिए उनको पद्मश्री मिला। और कोविड भी उन्होंने बंद नहीं किया, इसलिए उनको पद्मश्री मिला। तो बात मैं यहाँ पर आपका ध्यान उठा रहा हूँ फाइटोफार्मास्यूटिकल पर। तो हमारी लड़ाई ये है, हमारी लड़ाई ये नहीं है कि आप फाइटोफार्मास्यूटिकल डेवलप मत करो। हमारी लड़ाई ये है कि आप फाइटोफार्मास्यूटिकल में आयुर्वेद का नाम लो, आयुर्वेद को रिकॉग्नाइज करो, आयुर्वेद की महत्ता को स्वीकारो, और नहीं तो फिर जाकर के अपने उसी ड्रग डेवलपमेंट पर पूरा प्री क्लिनिकल के साथ आओ। ये शॉर्टकट छोड़ दो। आप एक प्लांट उठाइए, बहुत सारी पेनिसिलिन की भी खोज जो है किसी बॉटेनिकल से ही हुई थी, प्रिमिटिव। या बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बॉटेनिकल से निकली हुई हैं, लेकिन आप उसके ऊपर पूरा आपने हर प्रोटोकॉल को फॉलो किया है ड्रग डेवलपमेंट के, 12 साल के प्रोटोकॉल को फॉलो किया, 8 साल के प्रोटोकॉल को फॉलो किया, और तब आप उसको एक उसके रूप में, एक एलोपैथिक मॉलिक्यूल के रूप में आपने उसको लाइसेंस कराया है और मार्केट में ले आए हैं। डू दैट विथ रिलेशन ऑफ एवरी प्लांट एंड एवरी मॉलिक्यूल। एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं, ये प्लांट आयुर्वेद में हज़ारों साल से यूज हो रहा है, इसलिए हम उसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज नहीं करेंगे। आप राष्ट्र का, देश का, सबका पैसा बचा रहे हैं और हम उस नॉलेज को उस स्टेज पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन जब आप 4 मॉलिक्यूल लेकर के जब लाइसेंस बना लेते हैं तो आप आयुर्वेद को कहीं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। अब वो एक एलोपैथिक ड्रग हो गई है। ठीक है कि उस ड्रग की कैटेगरी आपने अलग कर दी है कि फाइटोफार्मास्यूटिकल, लेकिन उसके प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी पर और रिकॉग्निशन पर, आयुर्वेद की से पर हम लोग थोड़ा रिजर्वेशन रखते हैं। उसको आपको एड्रेस करना होगा। तो जब आप इसको एड्रेस करेंगे तो बहुत अच्छा रास्ता आएगा। और आप ये भी देख लीजिए कि फाइटोफार्मास्यूटिकल की 2015 में नोटिफिकेशन हुआ था और 2023 है। मैं बार बार इसको सर्च करता हूँ कि आईपी में कितने प्रोटोकॉल्स आ गए, उसके कितने फाइटोफार्मास्यूटिकल कैटेगरी के कितना उन लोगों ने डेवलप कर दिया। प्लांट्स तो उन्होंने 200 से ऊपर कर दिए हैं, बहुत फास्ट स्पीड में जा रहे हैं। लेकिन लाइसेंसिंग पे जब हम जाते हैं कि सीडीएसयू ने कितने लाइसेंस इशू कर दिए, या उनकी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसने कितने लाइसेंस इशू कर दिए फाइटोफार्मास्यूटिकल कैटेगरी में, तो अभी वो लोग डबल डिजिट में नहीं हैं। इतने फन फेयर के साथ इसको लॉन्च हुआ था, लेकिन इसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अभी वो डबल डिजिट पर नहीं पहुंच पाए हैं। आज 15 अगस्त 2023 को लाइसेंस इशू करने में पाइपलाइन में 6 हैं, 8 हैं, ये सारी सूचनाएं हैं। लेकिन एक चीज़ और, फिर फाइनल अगले सेशन में बात करेंगे क्योंकि 20-25 मिनट का समय हो चला है। तो देखिए, फाइटोफार्मास्यूटिकल जब आप गूगल पर डालते हैं, नेट पर सर्च करते हैं ना, तो आपको बहुत सारा लिटरेचर मिलता है। उसमें एक बहुत अच्छा पेपर छपा हुआ है अरुण भट्ट जी का, उसको एक बार को पढ़िए। लेकिन फाइटोफार्मास्यूटिकल के नाम पर नेट पे बहुत सारी फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशंस भी पड़ी हुई हैं। वो ये शो करते हैं गूगल पे कि कोई भी मेडिसिन जो प्लांट से बनी हुई है, थोड़ा उसको एक्सट्रैक्शन कर लिया गया है, थोड़ा सा उसके कुछ मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट कर लिया गया है, वो फाइटोफार्मास्यूटिकल है। ऐसा नहीं है। जो फाइटोफार्मास्यूटिकल की लीगल डेफिनेशन है और जो लाइसेंसिंग से आएगी, उसको मीट करना ज़रूरी है। और फाइटोफार्मास्यूटिकल के नाम पर, ठीक है, क्वालिटी तो आप मेंटेन कर ले जाते हैं, मैं इस पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी आप मेंटेन कर ले जाते हैं, आप पैकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव बातें कर लेते हैं, अट्रैक्टिव आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट फाइटोफार्मास्यूटिकल।
लाइसेंसिंग आपने कहाँ से कराई है? ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हमको अपनी नॉलेज गेन करनी है कि कहाँ से उन लोगों की लाइसेंसिंग हो जाती है। फिर जब डीप में जाते हैं तो पता चलता है कि वो फसाई से लाइसेंस लेकर के बैठे हुए हैं, ना एलोपैथी ने दिया है ना आयुर्वेद ने दिया है। एक बीच की वहाँ वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ही है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ से उन्होंने लाइसेंस ले लिया है कि ये न्यूट्रास्यूटिकल है। तो चलिए इस पर सब पे बात करेंगे, लेकिन अगले सेशन में। अभी फाइटोफार्मास्यूटिकल को हम भी आपसे और चर्चा करेंगे। अभी तो हमने एक सेशन में खाली ओरिजिन की बात की, दूसरे सेशन में हमने ये इंट्रैक्शंस किया, और तीसरे सेशन और शायद चौथा भी सेशन हो फाइटोफार्मास्यूटिकल पर, हम अलग अलग मुद्दों के साथ आपके बीच में होंगे। आपके कोई सजेशंस हो ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्ते। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।